Hi students. So till now we started and the chapter of reproduction in organism, and we have discussed the till the asexual reproduction, the way the organism reproduce asexually, that we have discussed. Now in today's lecture we are going to discuss about the reproduction in organism, that is by sexual method. Okay, so how the organisms are reproducing sexually. That is that is the main topic for today's lecture, and we'll try to finish it. Then we can start the next chapter, that is your reproduction in human. We'll try to start from the next video lecture. Right. So in case of as you all know that in case of the sexual reproduction, what is happening in case of sexual reproduction, or the organism are reproducing sexually? What is the difference between sexual and asexual? I have already discussed in the previous lectures, and you also have idea because you have already studied in the previous classes. You have a quite a bit idea about this. तो क्या होता है sexual reproduction? जहाँ पे in this process, what is happening? The individual organism, that is your male and female, they will produce gametes, right? So that is the main difference. So we'll study in detail today, that is a sexual reproduction. So sexual reproduction means there will be formation of gametes takes place, right? There will be two types of gamete basically. One is the male individual organism which produce the gamete produced by the male individual organism is called a male gamete, and the female individual organism producing the gamete, that is called female gamete, right? And in case of the sexual reproduction, normally what happens? There are two individual organisms involved. That means there are two parents. In the last lectures, we have discussed the asexual type, where we have seen that only a single parent is involved. But in this case, in case of the sexual reproduction, there will be two parents which are involved. One is your male and another one is your female. Okay, and they will produce both two different types of gametes, that is your male gamete and female gamete. Right. So the same point is you can see on the screen right now. See, in case of sexual reproduction, the gamete formation takes place, that is true, and these gametes are normally produced by two organisms. Here you have to write the M, I missed M. Or it would be one organism. अब ये ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऑर्गेनिज्म से ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा नॉर्मली? क्यों? मतलब क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमने क्या डिस्कस किया था, that we know that the male gamete will be actually produced by male individual organism, and female gamete will be produced by the female individual organism. But how it is possible that only one organism can do both? Yes, it is possible in case of hermaphrodites. We have studied in the previous chapters in 11th, I think, when you studied class 11th. In the beginning you have studied animal kingdom, where I think you have already studied about earthworm and some other organism who are hermaphrodites. Hermaphrodites means क्या मतलब होता है hermaphrodites? मतलब male or female reproductive part both are present in a single organism. तो वैसा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा कम होता है, ठीक है ना? So now in case of the higher organism, the sexual dimorphism can also be seen, right? लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं होता. सेक्सुअल dimorphism है उसमें उतना हर प्लांट में मतलब वो कम होता है, लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म है, जो आपके हायर एनिमल्स हैं, ठीक है, तो उसमें सेक्सुअल डायमोफिज्म दिखते हैं. हाँ, जो हायर प्लांट्स है उनमें भी दिखेंगे, ठीक है ना? सो विल डिस्कस वन बाय वन. तो जो प्लांट होते हैं, जैसे एनिमल के केस में हमने देखा कि दो इंडिविजुअल एनिमल मेल एंड फीमेल होंगे, उसी तरह से प्लांट में क्या होगा, दे विल आल्सो प्रोड्यूस द प्लांट, द हायर प्लांट्स, दे कैन आल्सो प्रोड्यूस both female and this male gamete separately, right? And then they will get fused, and the process of fertilization will complete, and as a result the zygote will form, and then further it will develop. Okay, and the same thing I have discussed with you just now, that hermaphrodites, what are hermaphrodites, right? The same thing is here.
Among the animals, the hermaphrodites can produce both the male and female gamete. तो कुछ एनिमल होते हैं कि जिनके बॉडी में मेल एंड फीमेल गैमेट सॉरी मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही होता है। इससे क्या है कि वो दोनों तरह के गैमेट को ही सीक्रेट या मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। नाउ द मेल गैमेट इन केस ऑफ द ह्यूमन, व्हाट वी call it sperm, and in case of female the gamete is known as egg or ova, ठीक है ना। तो हम जब आप जब अभी इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं आपके 12th में, after this you are going to study botany part and plant, you are going to study about the reproduction in case of flowering plants. So there you will study all the thing in details, and after that you will to study in zoology, that is your reproduction in human beings. So there we will discuss all the things in detail. तो आज के क्लास में हम क्या कर रहे हैं ना, हम बस we are actually getting an outline about the sexual reproduction. So everything the detail we'll study in the respective chapters. Plant also you will study in detail, and animal also you will study in detail. Animal in case of animal, that is we are going to study precisely about the human reproductive system, and which is mostly almost same in all other mammals as well, right? तो जो फीमेल होता है हमारे ह्यूमन के केस में, हम उनके वो जो गैमेट सीक्रेट करते प्रोड्यूस करते हैं उसे हम बोलते हैं एग और ओवा, और मेल जो करते हैं उसे बोलते हैं स्पर्म, ठीक है ना। चलिए, नाउ आफ्टर दैट व्हाट इज हैपनिंग, we'll discuss that also as well. अब देखो जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, गैमेट जो बनता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैमेटोजेनेसिस। और मेल के केस में जो स्पर्म बनता है उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं हम, स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो ओवा या फिर एग फीमेल के केस में डेवलप होता है फीमेल इंडिविजुअल एनिमल से, उसे हम कहते हैं oogenesis, ठीक है। तो ये हम जो अभी यहाँ पे देख रहे हैं, these are all examples of these are we are discussing in context of human, because हम अभी अगले चैप्टर में ह्यूमन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो हम ह्यूमन को ही ज्यादा कंसीडर करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। ह्यूमन एंड प्लांट्स ही पढ़ने, मतलब एनिमल्स में हम ह्यूमन को फोकस करेंगे, और प्लांट्स में हम कुछ तरह के वी स्टडी अबाउट सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एज वेल, ठीक है। तो जो गैमेट बनने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। अगर स्पर्म बनता है उस प्रोसेस से, जो कि मेल गैमेट, उसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अगर ओवा बन रहा है तो उसे कहते हैं oogenesis। ओवा या जो आपका एग है फीमेल गैमेट है, उसे हम बोलते हैं oogenesis, ठीक है। एंड दिस इज योर स्पर्मेटोजेनेसिस, फाइन। नाउ after the formation of the gamete, that is the sperm and ova or the egg, then what is the next step? The next step means what will happen? Then there will be the next step is your fertilization. अभी क्या होगा, sperm और egg जो है वो fuse हो जाएंगे. Then that process, the fusion of the sperm and egg is actually known as fertilization. That process is known as fertilization, right? Now the fertilization can be of two types, external and internal. We'll discuss later on in this class as well only, okay? अभी आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। अब उसके बाद क्या होगा, after fertilization, after the fuse of these male and female gamete, what will happen? The zygote will form, right? This is the first stage after the fertilization, that is called zygote. Now what will happen after the zygote formation? There will be certain changes what we can see in case of the zygote after it form. ओके, अभी होगा क्या, जाइगोट से धीरे धीरे क्या बनेगा, मतलब पहले होगा आपका प्लास्टुला स्टेज, फिर मोरुला, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, एम्ब्रायो, मतलब आपका एम्ब्रायो बनेगा, और जो एम्ब्रायो है धीरे धीरे जो डेवलप करेगा, फाइनली आपका एडल्ट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनेगा, है ना। तो ये जो एम्ब्रायो बनता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस कॉल्ड एम्ब्रायोजेनेसिस, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं हम लोग, मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, which they when they fuse together, then we call it as, and what they form after the fusion, that is called zygote, and the process is called fertilization, ठीक है। अब इसमें आपको और एक चीज जानना है, that is very very important। अब देखो नॉर्मली जो आपके zygote होते हैं, they have species specific diploid number। अभी जो species होगा, sperm जो होगा और ova जो होगा, मतलब male gamete, it will carry n number of chromosome, and the egg will carry n number of chromosomes. So together we'll find that both, actually the sperm is haploid and egg is also haploid, and the zygote is not haploid, zygote is diploid, and they are species specific all the time, always। अब एक चीज और जानना है आपको कि
जैसे हमने डिस्कस कर लिया है अभी कि आफ्टर द zygote is formed then what is happening after that the next stage is there will be some changes that will happen in case of zygote and slowly the embryo will form and that process is called embryogenesis, right? So what happens after the fertilization, then the zygote start to divide mitotically. अच्छा एक चीज और आपको लेट मी रिमाइंड यू और रिमाइंड ऑल ऑफ यू, सबको थोड़ा याद दिलाते हैं आपको। आपने पढ़ा होगा, आपको पता है, पहले हमने डिस्कस भी किया था पिछले लेक्चर्स में कि जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें जो मियोसिस है और माइटोसिस दोनों ही होता है, और एसेक्सुअल में क्या होता है, सिर्फ माइटोटिक डिवीजन होता है। तो अभी मियोसिस डिवीजन तो हो गया, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन जब होता है ना वो मियोसिस डिवीजन से होता है, और आपका जो embryo development होगा after the fusion, that is after the fertilization, and the embryo will form by what, by mitotic cell division, right? So that same thing is written here. You can see the zygote, then from the zygote what will happen, it will divide mitotically and then finally the embryo will form, ठीक है ना। अच्छा अभी एक चीज और हमें जानना चाहिए। अब जब ऐसा है कि the process or the changes what is happening before the fertilization in both the male and female individual organism, that those changes or those stages called or changes are known as pre-fertilization changes, and after the fertilization means after the mixing of the gamete of both male and female, and after the formation of the zygote, what the changes are happening, those changes are known as post-fertilization changes, right? So you can see on the screen right now the same thing. The entire process of the embryo formation is known as embryogenesis, and whatever the changes happen before the fertilization, these are known as pre-fertilization changes, and whatever the changes happens after the fertilization is known as post-fertilization changes. Okay, I hope it is clear. Now the next thing we'll discuss, that is the next topic or subtopic of today's lecture, that is the sexuality of the organism. अब sexuality of organism मतलब क्या समझते हो, क्या समझना है, क्या होता है sexuality of the organism? मतलब हम ये देखेंगे कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये बाइसेक्सुअल है या ये आपका हर्माफ्रोडाइट है, किस टाइप का है, तो इसका सेक्सुअलिटी कैसा है, उसे हम बोलते हैं सेक्सुअलिटी, ठीक है। उसका पैटर्न क्या है, मतलब उसका जो आपकी मेल और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अरेंजमेंट्स क्या है, और आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मतलब किस तरह से और किस हम कैसे कह सकते हैं कि हर्माफ्रोडाइट है, हम कैसे कह सकते हैं कि बाइसेक्सुअल है। अगर हर्माफ्रोडाइट है मतलब क्या हुआ कि दोनों ही जो सेक्सेस है वो एक ऑर्गेनिज्म में है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल हो जाएगा। अगर एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जैसे मेल पार्ट है तो उसे हम बोलेंगे यूनिसेक्सुअल, ठीक है। हर्माफ्रोडाइट एक्चुअली बाइसेक्सुअल है, लेकिन बाइसेक्सुअल जो टर्म हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं बेसिकली, और हर्माफ्रोडाइट जो है हम बेसिकली एनिमल्स के यूज करते हैं, लेकिन दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। जैसे आप प्लांट में देखोगे तो प्लांट में आपको क्या मिलेगा, आपको जो आपके डायशियस मोनोशियस टाइप के प्लांट्स मिलेंगे ना, कुछ प्लांट्स होंगे जो कि डायशियस है, कुछ प्लांट्स होंगे मोनोशियस है, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी इसी under this topic, that is called sexuality of the organism. So in plants, especially in higher plants, the sexually reproducing or reproducing organ is flower. Okay. तो अगर आप हायर प्लांट्स में देखेंगे तो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, बाय फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर, उनके पास फ्लावर होता है, फ्लावर इज एक्चुअली द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन in case of plant. Okay. Now flowers which have both male and female parts, just like in case of animal. अगर एनिमल में अगर बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट है किसी एनिमल में तो हम उसे हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। अगर प्लांट में अगर किसी फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही है तो हम उसे कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। एग्जांपल क्या है, चाइना रोज हो सकता है, हिबिस्कस हो सकता है ना, चाइना रोज या हिबिस्कस, ठीक है। तो दिस आर एग्जांपल, सो आई विल शो यू ऑन इमेज। आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़ा होगा, देखा होगा चाइना रोज, है ना। तो we'll okay, fine. I think right now I don't have the image, so I will show you later in the next video. Fine.
So if one flower has only male or female reproductive part, then we call it as unisexual. अगर सिर्फ एक फ्लावर में अगर एक ही पार्ट है, या तो मेल पार्ट है या तो फीमेल पार्ट है, दोनों में से कोई एक पार्ट है, वैसे फ्लावर को या फिर वैसे मतलब प्लांट में जो फ्लावर है, मतलब वैसे फ्लावर को हम कहेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर. ठीक है. और क्या हो सकता है? सी the male the male reproductive part of the flower is known as staminate. ठीक है. तो अगर फ्लावर अगर हम देखेंगे, जैसे लेट मी गो टू दैट डायग्राम अगेन. हाँ, ये वाला डायग्राम. अब देखिए कि यहाँ पे आपको दो चीज दिखेंगे, एक तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एक होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. सो दिस इज एंथर, दिस पार्ट इज स्टामेन, इसको हम बोलते हैं स्टैमिनेट. और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पिस्टिलेट. सो यू विल स्टडी इन डिटेल इन द चैप्टर दैट इज योर reproduction in flowering plants next in botany part. Okay, so जो मेल पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? स्टैमिनेट. फ्लावर में जो मेल पार्ट होता है, अगर जो फीमेल पार्ट है उसे हम कहते हैं पिस्टिलेट. ठीक है. सो हम बेसिक डिस्कस करेंगे, ज्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि जो चैप्टर है उसमें आप डिटेल में पढ़ना है आपको. यहाँ पे सिर्फ बेसिक जानना है. Now the plant which have both male and female part on the same body known as monoecious. ठीक है. इसे बाइसेक्सुअल भी कह सकते हैं. और क्या होता है? The plant which have only one part, that is the male and or female, such plants are known as dioecious. Example क्या है? पपाया. पपाया बहुत खाते होंगे, पपाया आपने देखा होगा. तो पपाया जो प्लांट है उसमें ऐसा होता है, या तो उसमें मेल या फीमेल पपाया, मतलब जिसमें क्या है ना, ट्री मेल हो सकता है और फीमेल अलग हो सकता है. मतलब जो पपाया प्लांट, मेल पपाया प्लांट वो अलग होगा, फीमेल पपाया प्लांट अलग होगा. ठीक है ना. सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. सो आपको शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा. सो दैट्स व्हाई आई विल शो यू वन स्कीमेटिक डायग्राम. फ्रॉम देयर एवरीथिंग विल बी क्लियर. अब देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम है, दिस वन, प्लांट्स विद हर्माफ्रोडाइट फ्लावर. मतलब कि एक प्लांट है तो उसमें आपका मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही है. ठीक है. तो ये हर्माफ्रोडाइट हो गया. मोनोशियस मतलब, इसका मतलब ये होता है कि उसी एक ही प्लांट बॉडी में आपका मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है. ठीक है. उसे हम कहते हैं मोनोशियस. डायोशियस मतलब एक प्लांट में सिर्फ एक ही जो आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट वो होंगे और दूसरे प्लांट में दूसरे रिप्रोडक्टिव पार्ट. मतलब अगर एक प्लांट है उसमें फीमेल है तो सारे फ्लावर जो है फीमेल होंगे. अगर मेल है तो सारे फ्लावर के जो पार्ट्स होंगे या फ्लावर होंगे वो सब मेल होंगे. समझ में आया ना. तो इस तरह के जो आपके प्लांट्स उसे हम कहते हैं डायोशियस प्लांट. और अगर किसी प्लांट में मतलब मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही मिले एक ही प्लांट बॉडी में तो उसे कहते हैं मोनोशियस. और हर्माफ्रोडाइट मतलब आपको समझ में आ गया है कि एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट्स. अब देखिए डिफरेंस. फर्स्ट केस में क्या है? सेम फ्लावर में मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट एक साथ है, उसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट. और सेकंड केस में एक फ्लावर में ओनली एक पार्ट है लेकिन, और दूसरे फ्लावर में दूसरा पार्ट, लेकिन ये दोनों ही चीज एक ही प्लांट में, एक ही प्लांट बॉडी में मेल पार्ट सेपरेटली, एक फ्लावर में मेल पार्ट हो सकता है सेपरेटली, एक आपके फ्लावर में फीमेल पार्ट हो सकता है. मतलब एक फ्लावर जो है वो सिर्फ फीमेल है, दूसरा फ्लावर जो है वो सिर्फ मेल है, लेकिन दोनों ही किसमें है? सेम प्लांट में बॉडी के ऊपर. इसे हम कहते हैं मोनोशियस. ठीक है. और डायोशियस मतलब होता है कि अगर किसी प्लांट में सिर्फ एक ही कैटेगरी के फ्लावर है, मेल है तो मेल है, फीमेल है तो फीमेल है. समझ में आया? I hope now it will be clear to you. So you can draw this diagram, you can pause the video. This is very important because आप अगर ये डायग्राम नहीं बनाओगे तो फिर से भूल जाओगे और आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा. तो ये डायग्राम हमेशा याद रखना. इसके साथ ही जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको यहाँ आप स्क्रीन में देखोगे वो सब लिख लेना. ठीक है. Yeah, these points. So the points are the plants which have only one part, then the plants which have both male and female part but on the same body are known as monoecious. अभी आपको कोई डाउट नहीं होगा. The plant which have only one part, that is the male or female, such plants are known as dioecious. Papaya.
तो पपाया का भी हम थोड़ा एक इमेज देख लेते हैं, रियल इमेज कैसा होता है। ये देखिए ऐसा होता है। तो आप देखो ये ए जो है ना पहला वाला, दिस इज ए, सो यू कैन सी हियर द फीमेल फ्लावर्स, ये तो फीमेल फ्लावर्स है, तो फीमेल फ्लावर्स ऐसे दिखते हैं, ठीक है। बी क्या है, हार्माफ्रोडाइट्स, ये हार्माफ्रोडाइट्स है। इसमें क्या है, मेल और फीमेल दोनों ही एक साथ है। तो पपाया में 3 कैटेगरी है, हार्माफ्रोडाइट्स भी हो सकता है, मेल फीमेल अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब सी वाला देखिए, मेल फ्लावर्स, ठीक है। सो दिस इज योर सी, और ये मेल फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर था, ये मेल फ्लावर है, तो देखो डिफरेंस देखिए। सो ये मेल फ्लावर, ये सारे पपाया ट्री है, ठीक है। और डी में क्या लिखा है, ये जो डी है दैट इज दिस वन, दिस इज योर फीमेल फ्रूट। मतलब फीमेल फ्रूट मतलब क्या हुआ कि फीमेल जो प्लांट है उसमें जब मेल प्लांट के पॉलन ग्रेन्स आके फर्टिलाइज हो गए, मतलब मेल गैमेट मतलब फ्यूज हो गया, तब जाके यहाँ पे पपाया बन गया। तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं फीमेल आपका फ्रूट, ठीक है। और दूसरा क्या है, हार्मेफ्रोडाइट फ्रूट, मतलब जो हार्मेफ्रोडाइट जो हमने देखा था, हार्मेफ्रोडाइट जो फ्लावर ये वाला जिस प्लांट पे, उसमें क्या हुआ, दो जब फर्टिलाइजेशन हो गया, आपका पॉलिनेशन हो गया, तो फिर क्या होगा, फ्रूट बन जाएंगे। सो दिस इज हार्मेफ्रोडाइट टाइप, ठीक है। और लास्ट में आप क्या देख रहे हैं, मेल ट्री। इसमें कोई फ्रूट्स दिख रहा है आपको, इसमें कोई भी फ्रूट्स नहीं होगा। क्यों फ्रूट्स नहीं होगा, क्योंकि जो फीमेल फ्लावर है, फर्टिलाइजेशन फीमेल फ्लावर के अंदर होता है, उसके बाद फ्रूट्स वहीं पे डेवलप होता है, मेल पार्ट में नहीं। सो बिकॉज ऑफ दैट यू कैन नॉट सी एनी फ्रूट्स इन द मेल प्लांट। आप मेल प्लांट में कोई भी फ्रूट्स नहीं मिलेगा आपको। अगर आप चाहो तो इसे स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा जूम करके देखना चाहो तो देख सकते हो। ओके, सो विल गो बैक टू आवर स्लाइड, फाइन, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ एनिमल्स, मैंने पहले ही बताया सेम थिंग, सेम पॉइंट्स। ओके, इन केस ऑफ एनिमल्स द hermaphrodite टर्म इज यूज्ड एंड दैट मींस बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल और hermaphrodite दोनों ही सेम, एक ही मतलब होता है। तो एनिमल के केस में हम उसे यूज करते हैं एज hermaphrodite, ठीक है ना। नाउ इन हायर एनिमल where the male and female are separate are known as unisexual। जैसे हमारे केस में है, मैमल्स में जो भी मेल इंडिविजुअल अलग होता है, फीमेल इंडिविजुअल अलग होता है, तो हम इसे कहते हैं यूनिसेक्सुअल, ठीक है। Now certain plants which produce flowers only once in their lifetime, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, and such plants are known as monocarpic। कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि जीवन में बस एक बार ही रिप्रोडक्शन करते हैं और एक बार ही अपना जो फ्लावर है वो बनाते हैं, बनता है उनमें, ठीक है। तो सर्टेन प्लांट्स व्हिच प्रोड्यूस फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, सच प्लांट्स आर नोन एज मोनोकार्पिक, ठीक है। एंड दैट मींस रिप्रोड्यूस ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। एग्जांपल क्या है, राइस, व्हीट, बैम्बू एटसेट्रा। अब देखिएगा जो राइस प्लांट है, व्हीट प्लांट है, इनका लाइफ साइकिल छोटा होता है, लाइफ स्पैन छोटा होता है। ये एक बार ही मतलब ये क्या होता है, हम जब राइस प्लांट को या व्हीट को ग्रो करते हैं तो क्या होता है, वो ग्रो मतलब पहले बेबी प्लांट को हम शो करते हैं, फिर धीरे धीरे वो ग्रो हो जाता है, रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंचता है, फिर फ्लावर जनरेट होता है, फिर पॉलिनेशन होता है, उसके बाद जो आपके व्हीट बनना है वो बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जो प्लांट है वो मर जाता है, इट डाई, राइट। So those type of plants which produce or reproduce only once in their lifetime and they are known as monocarpic, ठीक है। और बैम्बू जो है ना, बैम्बू देखो, बैम्बू तो मरता नहीं है, लेकिन बैम्बू जो ट्री है दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बैम्बू जो प्लांट्स है ना, उसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो 50 या 100 साल के रेंज में होता है। मतलब 50 एक जब बैम्बू ट्री हम फर्स्ट टाइम ग्रो करता है, हम जब लगाते हैं या फिर जब नेचुरली ग्रो होता है, सो इट विल ग्रो कंटिन्यूअसली फॉर 50 इयर्स, ठीक है। 50 साल तक वो ग्रो ही करता रहेगा, सिर्फ बढ़ता ही रहेगा, कुछ भी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, कोई भी फ्लावर नहीं बनेंगे, कोई भी उसका रिप्रोडक्शन नहीं होगा। आफ्टर 50 इयर्स, 50 से 100 इयर्स के बीच में एक समय वो क्या करेगा, फ्लावर जनरेट करेगा और एक ही बार रिप्रोडक्शन करेगा, एक ही बार प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं, थोड़ा और कुछ एग्जांपल लेके। जैसे आप देखोगे हम देख सकते हैं ना, कभी कभी सीजनल फ्रूट्स होते हैं, कुछ सीजनल फ्रूट सीजन में ही मिलता है ना। जैसे मैंगो अभी मिलेगा आप लोगों को, आप मैंगो अभी शायद खा रहे होगे, मिला होगा आपको। तो मैंगो हमें समर में मिलता है, क्यों, क्योंकि जो मैंगो प्लांट है वो साल में सिर्फ एक बार ही रिप्रोडक्शन करता है, एक बार ही उसका फ्लावर जनरेट होता है, और साल भर वो रिप्रोडक्शन नहीं करता, वो सिर्फ ग्रो करता है। इसीलिए मैंगो जो हमें साल में सिर्फ एक बार मिलता है, वो भी समर में। वैसे ही बम्बू प्लांट जो बम्बू ट्रीज है, बैम्बू जो है वो भी
उसका जो रिप्रोडक्टिव लाइफ स्पैन उसका बहुत लंबा है, और रिप्रोडक्शन जो भी बहुत लेट होता है, बहुत देरी में, मतलब 50 साल के बाद, है ना। मान लो कि अगर मैं पैदा हुआ तो शायद उस समय कोई बम्बू ट्री लगा है, तो मेरा उम्र जब 50 साल होगा, उसके बाद से 100 साल तक कभी भी रिप्रोडक्शन करेगा आपका बैम्बू प्लांट, तो शायद उसके उस समय तक मैं जीवित रहूं या नहीं भी रह सकता हूं। तो सो लॉन्ग टाइम यू कैन सी देयर आर सर्टेन प्लांट्स व्हिच रिप्रोड्यूस एंड देयर लाइफ स्पैन इज सो लॉन्ग, ठीक है। और रिप्रोडक्शन के टाइम पीरियड देखो वो भी बहुत लॉन्ग होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, देन आफ्टर दैट आई विल शो यू द इमेजेस, रियल इमेजेस ऑफ बैम्बू फ्लावर एंड ऑल दैट। नेक्स्ट एग्जांपल है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो प्लांट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। यू कैन सी राइट नाउ ऑन योर स्क्रीन, दैट इज स्ट्रोबिलैंथस क्वैंथियाना। स्ट्रोबिलैंथस क्वैंथियाना एक तरह का प्लांट होता है, और वो ये हमारे भारत में मिलता है। कहां मिलता है? वेस्टर्न घाट, जो नीलगिरी हिल्स है, साउदर्न इंडिया, वहां पे ये मिलता है। और इसका खास बात ये है ना, दे आर एक्चुअली ना, दे ब्लूम, द ब्लूमिंग कैन बी सीन ओनली वंस इन एवरी 12 ईयर। हर 12 साल के बाद इसमें ये रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इनका जो फ्लावर है वो बनता है। और एक साथ पूरे फॉरेस्ट में जितने भी ये नीलगिरी में जहां पे ये फॉरेस्ट में रह, मतलब ये फॉरेस्ट का ही पार्ट है, मतलब दीज आर फॉरेस्ट, दिस प्लांट्स कैन बी सीन इन द फॉरेस्ट ओनली। तो वो ग्रुप में रहते हैं, मतलब एक हिल में, तो मान लीजिए तो एक हिल में वही प्लांट्स हैं, और वो 12 साल तक उनमें फूल नहीं खिलेगा। 12 साल के बाद एक बार फूल खिलेगा, तो इट इज ऑल्सो अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, ठीक है। लास्ट मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ये लास्ट जब ये फूल खिला था वो 2018 में खिला था, इन 2018। तो अगर आपको देखना है ये नजारा, मतलब आपको नीलगिरी जाके फिर से, बिकॉज इट्स वेरी फैसिनेटिंग, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, इट्स पीपल आर कमिंग ऑल अराउंड द वर्ल्ड टू सी दिस, ओके। तो ये 12 साल में सिर्फ एक बार होता है। अगर आपको, और ये जो फ्लावर के कलर्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी फैसिनेटिंग, ब्लूइश पर्पलिश कलर होता है, ब्लूइश पर्पलिश, और बहुत ही खूबसूरत लगता है जब हम उसको देखते हैं एक वैली, मतलब वैली में जब उगा रहता है, मतलब या जो आपकी हिली एरियाज में होता है, तो हम देखेंगे, इट इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आई विल शो यू द इमेज एज वेल, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जो उनका लाइफ, जो आपके रिप्रोडक्टिव पीरियड है वो वेरी करता रहता है। वो शायद साल में एक बार रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, या 12 साल के बाद एक बार कर सकते हैं, या तो 50 साल के बाद कर सकते हैं। तो वी हैव मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंजेस। और ऐसे भी है जो जीवन में एक बार करते हैं आपका जो रिप्रोडक्शन, जो ऐसे भी प्लांट्स हैं, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, बैम्बू है, वीट है, राइस है ना। ओके, चलो आई विल शो यू दी image now. Okay, I'll show you the image. Okay, where is the image? Yeah. So this is the plant what I was talking about. 12 साल में जो एक बार bloom, मतलब you can see the blooming only once in 12 year. In every 12 year, once in every 12 year. ठीक है? ये है आपके स्ट्रोबिलैंथस क्वैंथियाना, यही प्लांट है, ठीक है। सो ये देखिए आप पहाड़ में ये खिला हुआ है, एंड हाउ ब्यूटीफुल इट इज। एंड यू कैन, इफ यू हैव टू सी डिफरेंट फोटोज ऑफ दिस ब्यूटीफुल व्यू, यू कैन गो एंड चेक इन गूगल, आप देख सकते हो, आपको मिलेगा। फाइन, नाउ दिस इज द बैम्बू फ्लावर, यू कैन सी द बैम्बू फ्लावर। ये भी 50 साल के बाद ही, और जीवन में बस एक बार ही आपको दिखेगा, मतलब ये उगता है, होता है। एंड दे ओनली परफॉर्म रिप्रोडक्शन वंस इन ए लाइफ टाइम, इन राइट। सो ये बहुत दुर्लभ है, मतलब बैम्बू का फ्लावर देखना बहुत मुश्किल काम है, हमें बहुत ही कम दिखेगा, मतलब फॉरेस्ट में जाएंगे या कहीं जाएंगे तो कहीं दिख गया तो अच्छी बात है, नॉर्मली हमें बहुत ही कम दिखता है, ठीक है। फाइन, सो नेक्स्ट इज, now we'll again discuss gametogenesis a bit. देखो, in case of the higher plants, the gametogenesis occurs in separate individual animals. Sorry, in higher animals, not plants. In higher animals, the gametogenesis happens in separate individuals. हमने डिस्कस किया मेल और फीमेल में होगा, तो अगर मेल में होगा तो उसे बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर फीमेल में होगा तो बोलेंगे उसको oogenesis. लेकिन प्लांट में क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। प्लांट में जो मेल गैमेट डेवलप होता है वो कहां होता है? पोलन ग्रैंड्स में होता है, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम कहते हैं, इन केस ऑफ प्लांट्स वी कॉल इट एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, या फिर क्या कह सकते हैं? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, या तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कह सकते हैं, या तो और क्या कह सकते हैं? माइक्रोगैमेटोजेनेसिस।
दोनों ही सेम है. अगर मतलब मेल गैमेट्स इन केस ऑफ प्लांट्स, द प्रोसेस बाय व्हिच दे प्रोड्यूस that is known as माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस, दोनों ही सही. और फीमेल के केस में अगर सेम चीज हुआ तो हम क्या कहेंगे उसको, मेगास्पोरोजेनेसिस और मेगागैमेटोजेनेसिस. ठीक है. अब जब गैमेट बन गया तो अभी ट्रांसफर भी होना चाहिए. अभी देखो गैमेट ट्रांसफर होने के बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे मतलब मैकेनिज्म हम देख सकते हैं नेचर. अब देखो प्लांट्स के बारे में हम बात करेंगे तो क्या होगा, इन द लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ब्रायोफाइट्स. ठीक है. तो उसमें क्या होता है ना, ब्रायोफाइट्स में जो होता है इनके जो मेल जो गैमेट्स होते हैं, जो मेल गैमेट्स होते हैं, दे आर एक्चुअली बेसिकली मोटाइल, मतलब वो मूव कर सकता है. ठीक है. मतलब इट इज रीचिंग और इट इज एक्चुअली अप्रोचिंग टुवर्ड्स द मेल फीमेल गैमेट बाय इट्स ओन, बाय मूविंग बाय इट्स ओन. तो ये मोटाइल होता है. सो बाय जो लोअर ऑर्गेनिज्म है, जो आपके ब्रायोफाइट्स हैं, उसका हमें देखने मिलता है कि ये जो मेल गैमेट है, दे आर motile, they can move and they can finally reach to the towards the they can move towards the female gamete and they can fuse themselves. जो फीमेल गैमेट होता है जो आपके लोअर आपके ऑर्गेनिज्म से, जो लोअर आपके प्लांट्स हैं, वो नॉर्मली नॉन मोटाइल होता है. ठीक है. और भी एग्जांपल्स है, जैसे आपकी यूनिसेलुलर जो एल्गी है, ठीक है, उनमें जो गैमेट्स होते हैं वो भी मोटाइल होता है, लेकिन उनमें मेल और फीमेल दोनों ही मोटाइल होते हैं. अभी हमने देखा कि ब्रायोफाइट्स के केस में क्या है कि सिर्फ मेल मोटाइल है, लेकिन जो आपके से यूनिसेलुलर कुछ एल्गीज होते हैं, ग्रीन एल्गी, उनके केस में देखा गया है कि जो गैमेट्स आपके मेल और फीमेल दोनों ही मोटाइल होते हैं, बोथ आर मोटाइल. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, अब जो आपके हायर प्लांट्स है उसमें अभी तो हमने लोअर प्लांट्स में देखा, ब्रायोफाइट्स में देखा, तो अगर हायर प्लांट्स में जो आपके मेल गैमेट है वो ट्रांसफर कैसे होता है, मतलब एक प्लांट से जो आपके फीमेल जो फ्लावर या फीमेल जो गैमेट है वहां तक कैसे पहुंचता है, हाउ इट इज अप्रोचिंग, हाउ इट इज गेटिंग ट्रांसफर. एंड एक्चुअली इट इज ट्रांसफर, आपने लोअर क्लासेस में यू हैव स्टडीड, आई थिंक यू ऑल हैव स्टडीड पॉलिनेशन. पॉलिनेशन मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, दैट इज योर एक्चुअली मेल gametes in case of the higher plants, where to the female counterpart, that means from anther to the stigma. Okay, और ये कैसे होता है, by agents, sometime by air, sometime air is also working as an agent, sometime water is also working as an agent. There are some insect, birds, most of the time it is insect, not birds actually. Most of the time, sometimes it is insect which actually working as a carrier or as a agent which transfer the pollen grain, that is the male gamete of gametes in the female counterpart, that is stigma. Pollens आपके anther से stigma तक ट्रांसफर करते हैं, और उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ दिस pollen grains or the male gametes from in higher plant, in case of higher plant is known as pollination, right? So the same point you can see here on the screen. In case of the higher plants, the male gametes are transferred by pollination, right? That's true, and it is the process by which the transfer of pollen grains takes place from anther to stigma, right? Now in higher animals, अभी देखो प्लांट्स के केस में तो पॉलिनेशन होता है, अभी एनिमल्स के केस में क्या होगा. अब एनिमल्स के केस में जो हायर एनिमल्स हैं उनमें क्या है ना, दे हैव एक्चुअली डेवलप्ड a specific mechanism. उसमें होता क्या है, by that mechanism they can transfer the male, actually the male organism, the male counterpart, they can transfer the sperm or the male gamete inside the female body. Okay, and that process is known as copulation. That is known as copulation. You can see here that is known as copulation. Okay, here this is copulation. Okay. Now after that, what will happen in case of both male and female? In case of plants and animal. See, when the male and female gametes are they are in the same place, or when they are actually fused. That process is called fertilization. Next step is your fertilization, which is also known as syngamy. Okay. तो क्या हो जाएगा fertilization? अभी देखो fertilization मैंने शुरू में बताया था आपको. So we'll discuss here as well. फर्टिलाइजेशन बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, या तो एक्सटर्नल हो सकता है या तो इंटरनल हो सकता है. एक्सटर्नल मतलब आउटसाइड द बॉडी,
जैसे एग्जांपल लेते हैं फ्रॉग का। फ्रॉग के केस में क्या होता है कि जो मेल पार्ट है, मेल और मतलब आपके जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है और फीमेल है, दे रिलीज बोथ एग्स एंड sperm in the water, external environment. So where these two get fused or fertilized and zygote will form, then the egg will also form. अब देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज हमें जानना पड़ेगा कि दो तरह से नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं और मतलब एक्चुअली अपने ऑफस्प्रिंग को मतलब डेवलप करते हैं। पहला तो बाय लेइंग एग्स और सेकंड बाय गिविंग बर्थ टू देयर यंग वंस। अब फर्स्ट कंडीशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अगर होगा तो it is not possible to give birth to the young one. But there are some there are certain higher organisms which are also laying their eggs. But in case of this external fertilization, there is only one option, that it should be the embryo, the growing embryo should be covered with a thick sheath to protect it and for proper development. And then it is forming the egg. अब हम आगे पढ़ेंगे, एक भी दो तरह का होता है, ठीक है। अब देखो ऐसा जो छोटे हो गए, जो आपके फ्रॉग्स हैं, इनके जो एग का साइज क्या है, छोटा होगा, इसका मतलब है जो यॉक होगा उसमें जो मटेरियल है, कंटेंट है, वो भी कम है, मतलब जो डेवलपमेंट होगा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, जो एम्ब्रायो डेवलप होगा वो कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, मतलब कंप्लीट एडल्ट बन नहीं पाएगा। तो क्या होगा, लार्वा बन के निकलेगा एग से उनके केस में। जैसे आप देख सकते हो फ्रॉग के केस में क्या होता है, लार्वा बनता है, जो उसको हम टैडपोल बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एग में सफिशिएंट जो न्यूट्रिशन है वो अवेलेबल नहीं है, छोटा है इसीलिए। तो सिर्फ लार्वा बनेगा, लार्वा खुद बाहर निकलेगा एंड इट विल हैव इट्स ओन लाइफ, इट विल फीड, इट विल ग्रो एंड देन आफ्टर रिवर्स मेटामॉर्फोसिस इट विल फाइनली चेंजेस इनटू अ इंडिविजुअल फ्रॉग, ठीक है ना। तो ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हमने बात किया है कि बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होगा, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, मेल एंड फीमेल जो आपके गैमेट्स है they will fuse and zygote will form, then after the formation of the zygote slowly it will form your embryo, and after that finally the young ones will come out or maybe the eggs will come out. So there are two possibilities. तो अब इसमें डिफरेंस क्या है, पिछले जो आपके फ्रॉग्स के एग्जांपल और इसमें डिफरेंस क्या है, एग्स में, इनके एग्स में क्या डिफरेंस है, द एग साइज विल बी बिगर, दैट इज द फर्स्ट। सेकंड, द यॉक कंटेंट इज मोर and sufficient to develop the embryo to the adult individual animal or organism, ठीक है। तो जो डेवलप होके जो प्रॉपर जो एम्ब्रायो से प्रॉपर जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और एनिमल बनना है, उसके लिए जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो यॉक में होता है, ठीक है। तो हम आगे देखेंगे। सो एग्जांपल क्या है, जैसे आप हायर एनिमल्स में या हायर आपके प्लांट्स में ये देख सकते हैं, ठीक है। और एम्ब्रायो फॉर्मेशन जो होता है उसे हम कहते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्ब्रायोजेनेसिस। आई हैव डिस्कस्ड इन अदर अर्लियर एज वेल। नाउ द एग प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, ओव्यूलेशन हो जाएगा, देन इन केस द ज़ाइगोट फॉर्म आउटसाइड द बॉडी, देन द एम्ब्रायो चेंजेस फॉर द डेवलपमेंट, देन इट कवर्स विद अ थिक शीट एंड दैट इज बाय फॉर्मिंग एग, ठीक है। और वैसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं ओविपेरस। क्या कहते हैं उन्हें, ओविपेरस, जो एग से ही रिप्रोडक्शन करते हैं, या फिर एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ओविपेरस। दोज हु गिव बर्थ टू द यंग वंस आर नोन एज विविपेरस, है ना। अब जो हमने अभी बात किया था कि अगर एग दो तरह के होते हैं, एक छोटा हुआ, जैसे फ्रॉग के केस में छोटा हुआ, उसमें यॉक कंटेंट जो है वो कम है, न्यूट्रिशन सफिशिएंट नहीं है प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। जैसे आप देखोगे कि अगर कोई बर्ड्स का एग है, तो जब वो एग हैच होता है ना, तो एक प्रॉपर बर्ड डेवलप होकर निकलता है, लेकिन वो छोटा होता है, बेबी बर्ड्स निकलते हैं। लेकिन फ्रॉग के केस में हमने देखा ऐसा हुआ नहीं, उनके केस में क्या होगा, लार्वा निकलेगा, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो ऐसा जो एग है जो आपके, उसे हम कहते हैं स्लेडोइक एग और क्लेडोइक एग, ठीक है। तो क्लेडोइक एग जो है उसमें क्या होता है, इट इज एक्चुअली सेल्फ सफिशिएंट। एग के अंदर ही पूरा जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वो डेवलप हो सकता है कंप्लीटली। क्यों, बिकॉज the egg yolk content which is there to supply the nutrition for the developing of embryo, it is sufficient. जितना जरूरी है उतना रहता है इसमें, न्यूट्रिशन सारा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट सब कुछ रहता है। इस तरह के जो एग्स है उसे हम कहते हैं क्लेडोइक एग्स, जो हमें बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में दिखेगा। Now in case of plants, the embryo present inside the seed. अच्छा, अभी जो embryo हमने भी देखा जो एग्स में मतलब in case of animals
जब एम्ब्रायो डेवलप होता है तो एग्स में रहता है, एग्स के बाद वो एग्स में ही धीरे धीरे वो डेवलप होकर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है। अब प्लांट्स के केस में क्या होगा, अगर आप कभी किसी सीड को थोड़ा सा बीच जैसे अगर आप देखोगे ध्यान से तो देयर विल बी वेरी टाइनी एम्ब्रायो इज प्रेजेंट इनसाइड द सीड एंड द सीड इज प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट, राइट। तो फ्रूट रहता है, फ्रूट के अंदर सीड रहता है और सीड के अंदर क्या रहता है, एम्ब्रायो। तो अगर जब प्रॉपर कंडीशन मिलता है उस सीड को, प्रॉपर मॉइस्चर, प्रॉपर ह्यूमिडिटी, प्रॉपर टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग, तो वो जो आपका एम्ब्रायो है वो धीरे 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 ग्रो करेगा और प्लांट डेवलप होगा। ठीक है, वो प्लांट के केस में भी दिखता है। अभी सीड जो है ना, सीड भी दो तरह का होता है। जैसे अभी हमने देखा कि जो कुछ प्लांट्स है उनमें जो फ्रूट्स होता है, मतलब सीड जो है इट इज कवर्ड विद द फ्रूट, इट्स कवर्ड बाय फ्रूट, but there are certain plants which are having seeds which are naked, okay, and those type of plants are known as gymnosperm। और जिस प्लांट में फ्रूट्स होता है उसे हम बोलते हैं, और सीड्स आर covered with fruits are called angiosperm। okay, so we'll see some, yeah, so this is the example of, this is carnivorous plant, so this example of naked seed, this is gymnosperm। और एंजियोस्पर्म तो आप जानती हो, जैसे मैंगो है, एप्पल है, जिसमें भी सीड्स फ्रूट्स के अंदर है वो सारे एंजियोस्पर्म है। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर, एंड बाय दिस वी हैव फिनिश्ड द चैप्टर दैट इज योर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। सो द नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स we will discuss and we will see about the next chapter, that is your human reproduction in human being, right? We'll study in detail. So till then, take care. Be safe, stay at home. We'll meet in the next video. Thank you.